define compound angles and their ratios. So write down compound angle. Sometimes they ask the definition. If A and B are two angles, then sum A plus B or difference A minus B are called a compound angle. So, for example, if A is 45 degree, B is 30 degree, then A plus B 45 degree plus 30 degree equal to 75 degree, and A minus B 45 degree minus 30 degree is equal to 15 degree. So this is called compound angle. So whenever the definition of compound angle is asked, that time you have to write down these things. If A and B are two angles, then sum or difference means subtraction, are called the compound angle. Here we write down one example. A 45 degree, B is 30 degree. Then addition of these two angles and subtraction of these two angles are called compound angles. Trigonometric ratios of compound angles. Now here we see without proof. The proof is not asked in the examinations. So without proof you directly by all these rules. Sin A plus B, sin A into cos B plus cos A into sin B. Sin A minus B, sin A cos B minus cos A sin B. Cos A plus B, cos A cos B minus sin A sin B. Cos A minus B, cos A cos B plus sin A into sin B. देखो how you remember this formula. Sin A plus B पे sin cos का कॉम्बिनेशन है और इधर प्लस है तो इधर प्लस sin A. कॉम्बिनेशन ऑफ sin cos और इधर प्लस तो इधर प्लस. Sin A minus B सेम फॉर्मूला है, सिर्फ माइनस है तो इधर भी माइनस आता है. Here also the combination of sin cos, cos sin and माइनस है तो इधर भी माइनस. But in case of cos, cos में cos cos का कॉम्बिनेशन है, प्लस है तो इधर माइनस आता है, तो इधर cos cos का कॉम्बिनेशन है, प्लस है तो माइनस है, और इधर sin sin का कॉम्बिनेशन है. और इधर cos A माइनस B में इधर माइनस है तो इधर प्लस आता है, तो इधर भी cos cos का कॉम्बिनेशन है और sin sin का कॉम्बिनेशन है. देखो लास्ट फॉर्मूले में sin A sin B इधर आता है और cos A cos B उधर जाता है तो चलता है, लेकिन यहाँ पे बीच में निगेटिव साइन है, इसलिए cos A cos B इधर ही होना चाहिए और sin A into sin B यहीं पे होना चाहिए. ओके, सो रीड ऑल दिस फॉर्मूलेस and remember. Now let's see the chart. Angles theta in this side, trigonometric ratios on this side. So angles में हम लिखते हैं 30 डिग्री, that is in radian pi by 6. pi का मतलब होता है 180, pi by 2 का मतलब 180 upon 2, that is 90 डिग्री. वैसे यहाँ पे pi upon 6 का मतलब 180 upon 6, that is 30 डिग्री. pi by 4 का मतलब 180 upon 4, that is 45 डिग्री. And here pi by 3 का मतलब 180 upon 3, that is 60 degree. Now you remember this chart. Sin 30 is half. Sin 45 1 upon root 2. Sin 60 root 3 by 2. Sin 30 root 3 by 2. Sorry, cos 30 root 3 by 2. Cos 45 1 upon root 2. Cos 60 1 upon 2. Then tan 30 1 upon root 3. Tan 45 1 and tan 60 root 3. Now in this case how you remember this chart? तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है वो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है. 1/2 1 upon root 2 root 3/2. फिर cos के लिए ये पूरा रिवर्स करो. जैसे 1/2 1 upon root 2 root 3/2 है, तो दूसरे रो में ये पूरा रिवर्स करो. यानी पहले root 3/2 आएगा, फिर 1 upon root 2 आएगा और फिर 1 upon 2 आएगा. यानी आपको ध्यान में रखना है तो सिर्फ ये पहला रो ध्यान में रखो. दूसरे रो में पूरा रिवर्स लिखा है और तीसरे इसमें tan थीटा का मतलब आपको पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो ये दोनों का डिवीजन अगर आप लेते हैं तो 1/2 root 3/2. यानी अगर आप डिवीजन लेते हैं
कि 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कौन, 1/√3। यहाँ पे ये दोनों डिवीजन करते हैं, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें भी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1, दैट इज √3। तो इन सच ए वे यू रिमेंबर ओनली फर्स्ट रो, सेकंड इसमें पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिखो, थर्ड इसमें ये सबका डिवीजन ले लो। तो इस तरह से ये वैल्यूज जो है वो आपके ध्यान में रहेंगे। इसके बावजूद ये भी ध्यान में रखो, sin 0 का मतलब 0, sin पाई का मतलब 0, इसका मतलब sin n पाई, तो n की जगह 0, 1, 2, 3 कुछ भी पुट करो, उस सब का वैल्यू 0 ही आएगा। आप प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 3, प्लस और माइनस 4 वो भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद में cos 0 इज 1, cos पाई इज -1, इन सच ए वे cos n पाई इक्वल टू -1 रेज टू n, यानी आप n की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 आएगा, n की जगह 1 पुट करेंगे तो cos पाई -1 आएगा। यानी n अगर इवन है तो प्लस रहेगा, n अगर ऑड है तो माइनस रहेगा। उसके बाद sin पाई बाय 2 इज 1, cos पाई बाय 2 इज 1। तो इन सच ए वे यू रिमेंबर ऑल these values because when you solve the examples this chart is necessary. Now here we find out some values, that is sin 15 degree, cos 75 degree, tan 75 degree. Because the value is not given directly, then how you find out? So we write down sin 45 degree minus 30 degree, यानी जिसको एंगल नोन है वो फॉर्म में उसको डिवाइड करो। जैसे 15 को मैंने 45 माइनस 30 लिखा, तो वी नो दैट sin a माइनस b, क्या है फॉर्मूला, sin a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो a का मतलब पता है 45 और b का मतलब होता है 30 डिग्री। अप्लाई करो फॉर्मूला, sin 45 डिग्री इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30। तो sin 45u 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45u 1/√2, sin 30 1/2। तो इस तरह से √3/2√2 माइनस 1/2√2 और द वैल्यू इज √3 माइनस 1/2√2। तो in such a way we find out the value of sin 15. Second one, cos 75 डिग्री। अब जैसे हमने 15 को डिवाइड किया है वैसे ही हम 75 को डिवाइड करते हैं। 75 को कैसे डिवाइड करेंगे आप बताइए। दिस इज cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। सो हियर वी यूज cos ऑफ a प्लस b, दैट इज cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो अप्लाई करो फॉर्मूला, cos 45 डिग्री इंटू cos 30 माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30. So we use this addition formula. So put down the values. Cos 45 degree 1/, cos 30 √3/2, sin 45u 1/2, sin 30 1/2. So √3/2√2 minus 1/2√2. So √3 minus 1/2√2. So check out, read it carefully. So in such a way, to find out the values 75, 15, we use this addition formula, sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b. Okay, in such a way we have to find out these values. Now we remember again one formula, tan a plus b. So tan a plus b का फॉर्मूला है tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b का फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है,
इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है। तो यू डायरेक्टली रिमेम्बर दिस फॉर्मूलेस, उसका कोई प्रूफ आपको यहाँ पे लिखना नहीं है। तो ये जितने भी फॉर्मूलेस मैंने दिए हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, तो ये सब वैल्यूज जो है ये आपको ये फॉर्मूले से ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए tan 75 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको सेपरेट करो, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो अप्लाई करो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री into tan 30. So put down the values. Tan 45 is 1, tan 30 is 1 upon root 3, 1 minus 1 into 1 upon root 3. तो root 3 plus 1 upon root 3, root 3 minus 1 upon root 3. तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, root 3 plus 1 upon root 3 minus 1. तो इस तरह से फॉर्मूला यूज करके हमने वैल्यूज फाइंड आउट किया।